Hello everyone, welcome back our channel and the subject is same, that is transportation engineering. We will discuss and we have to discuss second unit, railway engineering. This is a broad unit of a subject transportation engineering in which a number of topic we conclude or we can understand one by one. Just for example, in railway engineering, alignment of gauge, permanent way, in permanent way, that is creep, blast, sleeper, fixers, fastenings, concrete sleepers, wooden sleepers, metal sleepers, flat bearing plates, etc. we had discussed in our previous videos. This is our eighth lecture, or you can say eighth videos on transportation engineering. We will discuss in this video 2.3 as per SBT syllabus, that is railway track geometry. Okay, in railway track geometry we will discuss a coning of wheel, tilting of rails, what are the gradients and types of gradients, how we provide super elevation in railway track. Yes, we already know, yeah, we already discussed in our previous videos that elevation is also provided in roadways. Roadways in the sense it's flexible pavement or rigid pavement, but in this railway track also need a super elevation, where we provide, why we provide, and what are the features of super elevation in railway engineering. We will discuss next, next to the point coning or tilting. Okay, now, yes, railway track geometric. This is 2.3 for unit 2 railway engineering. That is railway track geometric. First topic is coning of wheel. What is coning of wheel? Before we discuss one by one point, I want to I want to take a understand in a view of a graph, or you can say a figure. This one, this is the a broad diagram of a wheel of, you can say wheel of a railway or train, you can say. The upper portion, that is coning of wheel treads, are given. What is coning of wheel? This portion in which the axles are combined with two flange, and the flange is wheel centrally placed on rail, that is coning of wheel. Okay, what is coning of wheel? Coning of wheel is the side portion of a flange, you can say, of a wheel. Okay, here it is, coning of wheel. If the flange of wheel are flat, then due to shocks there will be no movement between wheel and rail, due to which vehicle will not maintain in central portion, and there will be unequal disturbance of load. क्या कह रहा है? अगर if the flange of a wheel are फ्लैट, अगर फ्लैट रहता, कोनिंग नहीं रहता, कोनिंग इन द सेंस मतलब थोड़ा सा एंगल पे उसकी व्हील की जो सरफेस है वो एंगल बना हुआ रहता है। अभी अभी हमने जो एक डायग्राम दिखाया उसमें आप बखूबी देख सकते हो, बैक जाकर आप देख सकते हो, राइट। हम बात कर रहे थे कि क्यों हम उसको कोनिंग की शेप में या कोनिकल शेप में हम दे रहे होते हैं, किसको, व्हील को, क्या कारण है और क्या क्या हो सकता है अगर हम उसको सीधी रखें, है ना। इफ द फ्लैंज ऑफ ए व्हील आर फ्लैट, अगर हम उसको फ्लैट रखें, देन ड्यू टू शॉक, शॉक से, शॉक क्या मतलब कि झटका, रेलवे ट्रैक, रेल इंजन जब चलती है, रेल जब चलते हैं, ट्रेन जब चलते हैं तो क्या होता है, शॉक्स आते हैं, वाइब्रेट होता है, तो शॉक्स, देयर विल बी नो मूवमेंट बिटवीन व्हील एंड रेल, ड्यू टू विच, अब क्या व्हील चल रहा होता है तो रेल भी चल रहा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेल मतलब पटरी, ट्रैक, ट्रैक तो स्थिर रहता है,
व्हील चल रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, शॉक्स प्रोवाइड होती है ना। नो मूवमेंट बिटवीन व्हील एंड रेल ड्यू टू विच व्हील विल नॉट मेंटेन इन सेंट्रल पोर्शन। अब अगर मान लो फ्लैट रखे और ट्रेन चल रही है, ट्रैक रुकी हुई है, तो क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रली मेंटेन कर पाए, कौन, व्हील, क्योंकि वो फ्लैट है, हमेशा सेंट्रल पे मेंटेन कर पाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। तो ड्यू टू विच व्हीकल विल नॉट मेंटेन इन सेंट्रल पोर्शन एंड देयर विल बी अनइक्वल डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। अब क्या होगा, अगर व्हील अगर बीच में नहीं है, ठीक है ना, मेंटेन नहीं कर पा रहा है अपने आप को, लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल होगा। मतलब जो पूरे ट्रैक है, जो पूरा रेल है, उस पर ज़रूरी नहीं है कि पूरे पोर्शन पे लोड आए, राइट। तो उससे क्या होगा, अनइक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन रेलवे ट्रैक और इन रेल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देयरफॉर द फ्लेंजेज आर मेड इन शेप ऑफ कोन विथ अ स्लोप ऑफ 1/20। अब क्या है, इसीलिए इन कारणों से फ्लेंज जो है, ठीक है ना, व्हील का, वो क्या बनाया जाता है, कोनिकल शेप में, जिसकी स्लोप क्या होती है, 1/20। 1/20 मतलब अगर 1 यूनिट का अगर स्लोप है, ठीक है ना, डिफरेंस है कितने दूरी पे जाके, 20, ठीक है ना, 20 यूनिट की दूरी पे, ठीक है ना, 1/20, दिस टर्म्ड एज कोनिंग ऑफ व्हील। अब यही जो एलिवेशन रहता है, यही जो एंगल बनाया हुआ रहता है, यही जो 1/20 के रेशियो में जो रहता है स्लोप, दिस इज कॉल्ड कोनिंग ऑफ व्हील, दिस इज कॉल्ड कोनिंग ऑफ व्हील। ओके, नाउ it will also helps in decreasing the wear and tear of flange and rail। अब क्या कह रहा है, ये क्या मदद कर रहा होता है, वियर एंड टीयर ऑफ अ फ्लैंज। वियर एंड टीयर मतलब क्या होता है, वियर एंड टीयर ऑफ अ आयरन, वियर एंड टीयर ऑफ अ मेटल। ठीक उसी प्रकार वियर एंड टीयर ऑफ अ फ्लैंज मतलब टूटने, या आप स्क्रैच बोल सकते हो, वो सब नहीं आता है किसमें, व्हील में। क्यों, जो लोड होता है वो बराबर ट्रैक में जा रहा होता है, ड्यू टू प्रोवाइडिंग अ कॉनिकल शेप ऑफ अ व्हील इन रेलवे और रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बीचों बीच पड़ता है तो फिर दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट विल ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील प्रेशर इज ऑलवेज मेंटेन इन द इनर एज ऑफ अ व्हील। अब क्या है कि जब कोनिकल शेप है तो प्रेशर कहाँ लगेगा, प्रेशर प्रेशर हमेशा इनर सरफेस में लगेगा, मतलब हमेशा अंदरूनी भाग में लगेगा प्रेशर, राइट। ड्यू टू कोनिकल शेप, कोनिकल शेप होने के कारण व्हील का जो प्रेशर जो बन रहा है पूरे मैकेनिज्म में, वो कहाँ लगेगा, इनर शेप में, इनर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The next heading, or you can say topic, is under the railway track geometry is tilting of rails. The rails are placed with an inward slope of 1/20 on a railway track। अभी हम बात करें कि 1/20 के स्लोप में या रेशियो में हम क्या करते हैं, ट्रैक को बिल्ड करते हैं, ट्रैक को फिक्स करते हैं, राइट। दिस अरेंजमेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ रेल्स इज कॉल्ड एज टिल्टिंग ऑफ रेल्स। यही जो रेशियो होता है 1/20, ठीक है ना, 1 यूनिट का स्लोप 20 यूनिट के डिस्टेंस पे, डिस्टेंस के अंतराल पे या अंतर्गत पे क्या होगा, वहाँ पे 1 यूनिट का स्लोप होगा। तो यही जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं, या इस अरेंजमेंट को, टोटल अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ रेल्स इज कॉल्ड अ टिल्टिंग ऑफ रेल्स। ओके, इट्स कॉल्ड टिल्टिंग ऑफ रेल्स। नाउ if the rails are placed axially vertical
the top surface of rails will not come in contact if the rails are placed axially vertical. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा कौन, रेल्स, रेल्स मतलब पटरी, ट्रैक, द टॉप सरफेस ऑफ रेल्स will not come in contact with wheel fully and whole pressure is exerted on interface due to which interface warm out quickly. अगर आप बात अगर ये करके चले कि ये सब टिल्टिंग वगैरह ना दे तो क्या होगा, इधर उधर लोड लगेगा. क्यों लोड लगेगा इधर उधर, क्योंकि जो सॉक्स है, जो सॉक्स क्रिएट होगी जब रेलवे ट्रैक रुका हुआ रहेगा और ट्रेन चल रही होगी, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो व्हील और प्लस ट्रैक में, तो वो जो सॉक्स प्रोवाइड होगा तो उसी के कारण ये कह रहा है इफ़ द रेल्स आर प्लेस्ड एक्सियली वर्टिकल द टॉप सरफेस ऑफ रेल्स विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ व्हील फुल्ली. अगर व्हील के कॉन्टैक्ट में फुल्ली ट्रैक नहीं आया एंड द होल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इंटरफेस ड्यू टू विच इंटरफेस warm out quickly, so to avoid this rails are placed at an inward slope. अब क्या होगा, हो सकता है अगर मान लो बाहरी की दिशा में ज़्यादा फोर्स लग गया तो बाहर निकल आ जाएगा कौन, रेलवे ट्रैक अपने जगह को छोड़ सकता है, ठीक है ना. और भी बहुत सारा चीज़ रहता है, फिश बॉल्स रहता है, फिक्सर्स रहते हैं, वो सब क्या हो जाएगा, अपने स्थान को छोड़ चुका होगा. और जैसे ये प्रक्रिया होगी तो क्या हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाएगा कौन, पूरा रेलवे मैकेनिज्म, रेलवे ट्रैक का जितना भी सदस्य है, ठीक है ना, जो उसको मेंटेन करता है, जो उस पर ट्रेन चलवाते हैं, और भी बहुत सारा एम्प्लॉय होता है, सारे क्या हो जाएंगे, दिक्कत में पड़ जाएंगे. तो इन चीज़ों को हटाने के लिए टू अवॉइड दिस द रेल या रेल्स आर प्लेस्ड एट एन इनवर्ड स्लोप. कहाँ पे, इनवर्ड, अंदरूनी दिशा में या अंदरूनी जगह में, ठीक है ना, इनर सरफेस या इनर वे. सो टू अवॉइड दिस रेल्स आर प्लेस्ड एट इनवर्ड स्लोप. इनवर्ड स्लोप में होता है, बाहरी से अंदर की ओर होता है, ना कि अंदर से बाहर की ओर, राइट. आगे देखते हैं. Here the next topic on geometric is gradient. What is gradient? Gradient are provided to negotiate the rise or fall in the level of the railway track. क्या है ग्रेडियंट, उस चीज़ को या ग्रेडियंट उसे कहते हैं या ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए, टू नेगोशिएट द राइज एंड और फॉल इन द लेवल ऑफ द रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक में जो राइज और फॉल होती है उसको नेगोशिएट करने के लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, अ राइजिंग ग्रेडियंट इज वन इन विच द ट्रैक राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड अ डाउन और फॉलिंग ग्रेडियंट is one in which the track loses elevation in the direction of the movement of traffic. मतलब अगर राइजिंग ग्रेडियंट की बात करें तो ये वो उस चीज़ को बोल सकते हैं या उस फेनोमेना को बोल सकते हैं जब इज वन इन विच द ट्रैक राइजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक. जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर ग्रेडियंट राइज होगा, चढ़ाव होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, राइजिंग ग्रेडियंट. इन अदर कंडीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक एंड अ डाउन और फॉलिंग ग्रेडियंट, डाउन और फॉलिंग ग्रेडियंट इज वन विन विच द ट्रैक लॉसेस एलिवेशन. ट्रैक क्या कर सकता है, लॉस कर रहा है, किस चीज़ का, एलिवेशन का. ओके, एलिवेशन का लॉस कर रहा है तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, डाउन ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. ट्रैफिक जिस तरफ जा रहा है अगर उस तरफ एलिवेशन खो रहा है, एलिवेशन खो रहा है मतलब क्या कि नीचे की ओर जा रहा है, दैट इज डाउन ग्रेडियंट. अगर ऊपर की ओर जा रहा है दैट इज राइज ग्रेडियंट या राइजिंग ग्रेडियंट. ओके, सम टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट आर गिवन बिलो. टाइप्स आर फर्स्ट रूलिंग ग्रेडियंट, सेकेंड मोमेंटम ग्रेडियंट, थर्ड पुशर ग्रेडियंट इज ऑल्सो नोन एज
helper gradient. Fourth, station yard gradient. These four gradients are categorized or types of main gradient: ruling, momentum, pusher or helper, station yard gradient. First of all, we will discuss first one, A1, that is ruling gradient. What is ruling gradient? We will discuss. Here it is. The what is ruling gradient? The permissible gradient usually provided in a railway track is called the ruling gradient. The permissible gradient usually provided in the railway track is called the ruling gradient. जितना प्रोवाइड किया जा सकता है या नॉर्म्स में लिखी हुई है या आईआरसी रिकमेंड कर रहा है, द परमिसिबल ग्रेडियंट, जितना आपको आईआरसी दी है नॉर्म्स के अनुसार, रूल्स के रेगुलेशन के अनुसार, उतने वाले ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं? रूलिंग ग्रेडियंट. ठीक है. इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड ऑन द पर्टिकुलर ट्रैक सेक्शन. अगर रूलिंग ग्रेडियंट एक्स है तो एक्स इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट प्रोवाइडेड बाय आईआरसी और नॉर्म्स. इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड ऑन द पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्शन. ठीक है. रूलिंग ग्रेडियंट मैक्सिमम होती है उस सेक्शन के लिए जहाँ पे आप जा रहे हो. ठीक है ना, जहाँ पे आपका ट्रैक है. रूलिंग ग्रेडियंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द लोकोमोटिव. सही बात. आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट जहाँ पे अलाउड है, ठीक है ना, जितना भी आप परमिसिबल है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है किस पे? पावर ऑफ लोकोमोटिव. आपका जो इंजन है, ठीक है ना, वो कितना पावर का ग्रेडियंट पे चढ़ा सकता है अपनी पूरी ट्रेन को आसानी तौर से, बिना दिक्कत से. दैट इज रूलिंग ग्रेडियंट. जनरली विथ वन लोकोमोटिव ट्रेन द फॉलोइंग रूलिंग ग्रेडियंट आर अडॉप्टेड इन इंडिया. अगर हम बात करें रूलिंग ग्रेडियंट इंडिया में, ठीक है ना, तो क्या है? मैक्सिमम या आप बोल सकते हो ग्रेडियंट जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो प्लेन के लिए, हिली के लिए कितना, वो दी हुई है. जनरली विथ वन लोकोमोटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वन लोकोमोटिव मतलब एक ही इंजन वाला. ठीक है ना. अब आप बोलोगे दो इंजन कहाँ है? कभी कभी लगा हुआ रहता है आगे और पीछे. ठीक है. तो जनरली विथ वन लोकोमोटिव ट्रेन द फॉलोइंग रूलिंग ग्रेडियंट्स आर अडॉप्टेड इन इंडिया. फर्स्ट वन, इन प्लेन टेरन, समतल जमीन में 1/150 या 1/200, 1 से लेकर 150 या 200 से लेकर 400 तक के बीच में दिया गया है. किसके द्वारा? आईआरसी के नॉर्म्स के द्वारा. ठीक है ना. और हिली रीजन के लिए 1/100 to 1/150. ठीक है ना. ये क्या हो गया? हमारा ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाने का तरीका हो गया. कितना कितना प्रोवाइड करवाते हैं. राइट. आगे देखते हैं. सेकंड वन इज मोमेंटम ग्रेडियंट. व्हाट इज मोमेंटम ग्रेडियंट? द राइजिंग ग्रेडियंट विच इज फॉलोड बाय अ फॉलोइंग ग्रेडियंट, followed by a falling gradient, and along which trains climb more easily due to momentum acquired by them over the falling gradient is called momentum gradient. Thus a momentum gradient can be steeper than the ruling gradient. अब क्या कह रहा है? मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है? तो द राइजिंग ग्रेडियंट विच इज फॉलोड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट. अब क्या हो? राइजिंग तो है लेकिन क्या है? पहले फॉलिंग है. तो जो राइजिंग ग्रेडियंट फॉलोड बाय फॉलोइंग ग्रेडियंट फॉलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? एंड अलॉन्ग विच ट्रेन्स क्लाइम मोर इजिली. अब मान लो कोई ऊपर चढ़ना है तो आप एक बार नीचे जाओ तो उस फोर्स से, ठीक है ना, आप ऊपर आसानी से जा पाओगे. तो उसी को बोल रहा है द राइजिंग ग्रेडियंट विच इज फॉलोड बाय अ फॉलिंग ग्रेडियंट एंड अलॉन्ग विच ट्रेन्स climb more easily due to momentum acquired by them
ओवर द फॉलिंग ग्रेडियंट इज कॉल्ड मोमेंटम ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये फॉलिंग ग्रेडियंट के सहारे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मोमेंटम ग्रेडियंट। दस मोमेंटम ग्रेडियंट कैन बी स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग ग्रेडियंट से हमारा जो मोमेंटम ग्रेडियंट है वो ज़्यादा स्टीपर होगा। ठीक है ना, व्हाट इज स्टीपर, यू वेल नोन। ठीक है ना, व्हाट इज स्टीपर ग्रेडियंट। नेक्स्ट वन, पुशर ग्रेडियंट। व्हाट इज पुशर ग्रेडियंट, द राइजिंग ग्रेडियंट विच इज स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट। जो राइजिंग ग्रेडियंट है वो स्टीपर होना चाहिए रूलिंग ग्रेडियंट से, एंड along which trains required additional locomotives to climb up the track is called a pusher gradient। मतलब ट्रेन को ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे लोकोमोटिव की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पे, टू क्लाइंब ट्रैक इज कॉल्ड द पुशर ग्रेडियंट। These types of gradients are very important in mountainous terrain where steeper gradients are necessary to reduce the length of the track। अब क्या हो रहा है कि ये जो पुशर ग्रेडियंट है वो माउंटेनियस एरिया में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े थोड़े लेंथ को तय करने के लिए ढेर सारा टर्न लेना पड़ता है, तो या इस चक्कर में क्या स्टीपर बन जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माउंटेनियस टेरेन वेर स्टीपर ग्रेडियंट आर नेसेसरी टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ट्रैक के लेंथ को कम करने के लिए वहाँ की जो रेलवे का जो ट्रैक बिछा हुआ है, तो वो क्या है, दिस टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माउंटेनियस के लिए। क्यों, वेर स्टीपर ग्रेडियंट आर नेसेसरी टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रैक। हम बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ द ट्रैक को कम करने के लिए, क्योंकि माउंटेन में क्या होता है, अगर एक ही जगह आप घूमोगे फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे, फिर घूम के वहीं आओगे, फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे, तो स्टीपर हो जाता है। तो इस तरह के पुशर ग्रेडियंट मतलब दूसरे लोकोमोटिव पीछे से उसको पुश करेगा, यूज होता है ना, किसमें, पुशर ग्रेडियंट। एंड द लास्ट वन इज स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। द मिनिमम gradient provided on station yard for easy drainage is called station yard gradient और minimum gradient। इस स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट जो होता है वो ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ठीक है ना, पानी बहाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। इन इंडियन रेलवे द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन स्टेशन यार्ड इज टेकन एज 1/400 while the minimum gradient recommended for a station yard is 1/1000। मतलब एक यूनिट 400 में, और अगर बात करें मिनिमम ग्रेडियंट रिकमेंडेड तो 1/1000 में। ठीक है ना, तो ये क्या है, स्टेशन यार्ड। ठीक है ना, तो ये कुछ टाइप्स थे, किसके, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट के। उससे पहले हम लोग पढ़ें टिल्टिंग या कॉनिंग। दिस इज ऑल अबाउट रेलवे ट्रैक जियोमेट्रिक का कोनिंग पार्ट, टिल्टिंग पार्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट में हम लोग ग्रेडियंट भी पार्ट इसमें पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपर एलिवेशन, व्हाट इज सुपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट 2.3 ज्योमेट्रिक डिजाइन। ठीक है ना, ऑफ अ रेलवे ट्रैक। बट वी conclude or we will discuss in our next videos or lecture about some interesting topic. Till thank you, and thank you for watching these videos.